तो पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी पर बीजेपी मगरबी बंगाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तनकीद करते हुए सरकार पर और पार्था पर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। आजम खान ने इस मामले में हुकूमत को निशाना बनाया। आजम खान ने कहा कि नमाज पर पाबंदी नहीं है, बल्कि नमाज कहां पढ़ी जाए ये बहस का मौजू है। सर, नमाज को लेकर बड़ा आवाज़ें उठ रही हैं और विरोध जताए जा रहे हैं। नमाज को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं और विरोध जताए जा रहे हैं। अभी प्रयागराज में, इलाहाबाद में भी यही केस सामने आया है। क्या नमाज नहीं पढ़ने दे रहे? सर, नमाज पर पाबंदी उठाई जा रही है और विवाद खड़ी की जा रही है। पाबंदी नहीं, नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बहस का मामला है और ये मुनसर करता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या कितना छोटा है। झारखंड में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीजीआई एनवी रमना ने सोशल मीडिया पर जजों पर हमलों और उन्हें ट्रोल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बाज़ तबके में अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत नहीं है। उनका कहना है कि एजेंडे पर मबनी कवरेज जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। सीजीआई के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही सिफर है, जबकि प्रिंट मीडिया अब भी जवाबदेह है। Given the current situation is that we are simply not equipped to handle the rising challenges of the future. If the judiciary suffers, our democracy suffers. This is a serious issue. Doing justice is not an easy responsibility. It is becoming increasingly challenging with each passing day. At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased reviews being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability, as what it shows vanishes in the thin air. Still worse in social media. Owing to the frequent transgressions and consequential social unrest, there is growing demand for stricter media regulations and accountability. In fact, looking at recent trends, it is best for the media to self-regulate and measure their words. I urge upon the media, particularly the electronic and social media, to behave responsibly. You are as important as stakeholders as we are. Please use the power of your voice to educate the people and to energize the nation in our collective endeavor to build a progressive, prosperous and peaceful India. केशव देव के आजम खान से मुलाकात के बाद सियासत गर्म है। केशव देव ने कहा कि अखिलेश यादव बच्चे हैं, जबकि आजम खान जौहरी हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी से इत्तेहाद करने और ख़त्म करने को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम आजम खान के साथ कोर्ट भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए और साथ में खाना भी खाया। केशव देव ने कहा कि सियासत में इम्कानात खत्म नहीं होते। सपा नेता आजम खान और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की मुलाकात सुर्खियों में बनी हुई है। इस मुलाकात में क्या खास रहा, क्या बात हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सर, कल बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर में आपकी मुलाकात आजम खान से हुई, क्या ख़ास रहा मुलाकात में, क्या बात हुई? ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय आजम साहब ने मुझे समय दिया था और मैं कल उनके आवास पर गया, उनके साथ कोर्ट में भी गया, उनकी पेशी थी, और फिर मैं जौहर यूनिवर्सिटी भी गया, वहाँ उनके साथ बैठा, काफ़ी समय उन्होंने मेरे साथ मुझे दिया। और समाजवादी पार्टी गठबंधन में क्या हुआ था, चूँकि उनके गैर मौजूदगी में गठबंधन हुआ था, तो क्या क्या हुआ था वो जानना चाहते थे। मैंने सब डिटेल बताया और क्यों मैंने गठबंधन तोड़ा वो भी बताया, किस प्रकार फॉर्च्यूनर मुझसे ली गई वो भी उन्होंने जानना चाहा, तो मैंने वो भी बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से गलती हुई और ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं सब चीज़ें ठीक करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। मैंने कहा कि देखिए, मैं समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी से दुखी होकर, मैंने उन्हें भगवान माना, मैंने उन्हें चुनाव में कहीं भी दबाव बना के एक सीट भी और कोई चीज़ बढ़ानी नहीं चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ से परेशानी है। उन्होंने जो सीट अच्छी बुरी दी, मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव हारने की भी चिंता नहीं की। मेरे पास फाइनेंशियली मैं वीक था, मुझे 8 सीट देने की बात कही थी, अगर दिया गया होता 6 सीट पे मैं भी प्रत्याशी लड़ा था और उनसे कहता कि मेरी भी परिवार की दोनों सीट लड़ा। लेकिन अगर मुझे पता होता कि 2 ही सीट मिलेगी तो मैं एक ही परिवार को लड़ाता, एक किसी दूसरे को लड़ाता, कार्यकर्ता को लड़ाता। लेकिन जब मैं लड़ा लिया तब मुझे पता लगा कि ना तो मेरे पास लड़ने के पैसे हैं और ना संसाधन है और ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह की मदद कर रहे हैं जिस तरह से मदद होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आप कल आजम खान से मुलाकात, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से कराता हूं, तो क्या सर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और महान दल एक बार फिर से गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, संभावनाएं कहीं ख़त्म नहीं होती और ना कोई मेरी कोई दोस्ती है और ना मेरी किसी से परमानेंट दुश्मनी है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में समाजवादी पार्टी से बेहतर राजनीति कोई कर नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश जी को इन चीज़ों को मैनेज करने आता नहीं। जैसे किसी बच्चे को आप हीरा दे दो तो उसे कंचा समझ लेता है, उसे कंचा खेलता है। लेकिन उसे अगर उसी हीरे को जौहरी को दे दो तो वो उसे तराश कर अंगूठी बनाता है और महंगी बेचता है। तो जौहरी नहीं है अखिलेश जी, जौहरी हैं आजम साहब। उन्हें पता है कि किन किन लोगों को जोड़ कर सरकार बनाई जा सकती है। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, जिनका साफ कहना है कि राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आजम खान से मुलाकात हुई, गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, उस समय आजम खान जेल में थे, उन्हें कुछ नहीं पता था, सारी बात विस्तार से बताई गई और उन्होंने कहा कि इस मामले में वह अखिलेश से भी बात करेंगे। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।